تو میں اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد 8 گھنٹے وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی تھی، تو مجھے ایک سے دوسرے دن ٹائم ملتا تھا 3-4 گھنٹے، تو میں وہاں پر جا کے باقاعدہ موسیقی سیکھتا تھا۔ میاں والی پولیس کے اندر ضیاء اللہ خان سنبل کا نام جب سامنے آتا ہے تو ایک انتہائی معزز باوقار پولیس آفیسر کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں 25/6/83 کو بطور ASI میں پولیس میں نے انٹر ہوا۔ SHO شپ بھی گزاری، پھر DSP پروموٹ ہوئے۔ بطور DSP کہاں کہاں پر آپ تعینات رہے؟ ہو لگنی تا جانے ہو زندگی دے روگے، لگنی تا جانے درداں دے روگے۔ سرزمین میاں والی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر مختلف حوالوں سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ میاں والی کا جب نام آتا ہے تو یہاں کی بڑی بڑی شخصیات کا تصور ہمارے ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ میاں والی کا شمار پاکستان نہ صرف بلکہ ہندوستان کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جنہیں مارشل ایریا کہا جاتا ہے۔ سرزمین میاں والی کے جوان پاک فوج، دیگر سلامتی کے اداروں، پولیس اور مختلف علاقوں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میاں والی کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں کے جوان فوج اور پولیس میں اپنی نہ موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک مہمان ہیں ضیاء اللہ خان سنبل۔ سنبل فیملی کا میاں والی کے اندر بڑا ایک نام اور مقام ہے۔ سنبل خاندان نے مسلح افواج، بیوروکریسی، پولیس اور مختلف شعبوں کے اندر بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ میاں والی پولیس کے اندر ضیاء اللہ خان سنبل کا نام جب سامنے آتا ہے تو ایک انتہائی معزز باوقار پولیس آفیسر کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب سنبل صاحب، ہم آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس میں سروس کا آغاز کب کیا اور کس رینک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں جناب رانا امجد صاحب کا، جو انہوں نے میرا انٹرویو شائع کیا ہے اور مجھے ٹائم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں 25/6/83 کو بطور ASI میں پولیس میں نے انٹر ہوا اور میں نے یہاں پہ نوکری اپنی شروع کی پولیس۔ اور میں اس میں کافی ہماری ٹریننگ ہوئی، سہالہ میں ہم نے ٹریننگ کی۔ اس کے بعد پھر واپس آ کر مجھے بکھر ضلع الاٹ ہوا۔ بکھر ضلع میں 85 میں بکھر سٹی میں بطور ASI میں نے کام کیا۔ بکھر سٹی کے بعد پھر میں بطور SHO حیدرآباد تھل 86 میں لگا، حیدرآباد تھل۔ سر آپ نے SHO شپ بھی گزاری، پھر DSP پروموٹ ہوئے۔ بطور DSP کہاں کہاں پر آپ تعینات رہے؟ میں 2005 میں DSP پروموٹ ہوا تھا۔ DSP پروموٹ ہو کے میں اسپیشل برانچ بکھر میں تعینات ہوا، وہاں پہ میں نے سروس کی۔ اس کے بعد پھر میں DSP ٹریفک ٹوبر ٹیکسنگ میری پوسٹنگ ہوئی، وہاں پر میں نے بطور 4 سال DSP ٹریفک گزارے۔ اس کے بعد پھر میں DSP ٹریفک فیصل آباد میں میری پوسٹنگ ہوئی۔ فیصل آباد میں 2007-2008 میں میری پوسٹنگ ہوئی۔ یہاں پھر ہم نے جو وارڈن تھے ان کو ہم نے بھرتی کیا، وارڈنس کو، پھر ہم نے ان کو ٹریفک کے متعلق بریفنگ دی۔ سر آپ نے مختلف جگہوں پر ٹریفک میں بھی رہے، آپ اسپیشل برانچ میں بھی رہے، CTD میں بھی رہے، اور آپ نے یہاں پر جو تھی ہماری اس وقت جو موجود ہے سڑکوں کے اوپر ہمارے پولیس کا ٹریفک کا جو ایک نظام ہے اس کے اندر بھی آپ نے خدمات سر انجام دی۔ تو مجھے یہ بتائیں، اتنی ایک طویل سروس ہے آپ کی 40 سال، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور پولیس آفیسر، بطور پولیس اہلکار، آپ نے زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ کب تھا؟ میں نے محکمہ CTD میں 2017 میں بطور DSP انویسٹیگیشن CTD پنجاب فیصل آباد میں میری پوسٹنگ تھی۔ وہاں پہ ہمارا ڈکے جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ انہوں نے ہمارے ایک انسپیکٹر چودھری فدا کو، جو سمندری کا رہنے والا تھا، اس کو شہید کیا۔ پھر وہ ادھر سے گزر کر گئے، ہم ان کے پاؤں پر جہاں پہ وہ گزرے تھے کھریج پر، ہم ان کے پیچھے گئے۔ ہمارے ساتھ ایک SHO تھا گڑھ
SHO राना तायर उसका नाम था, और 2 उसके साथ गनमैन थे, एक मैं था, मेरे साथ 2 गनमैन थे, और एक हमारे साथ खोजी था जो हमें खुरे की निशानदेही करता था। हम उसके जो दहशतगर्द था उसके पाँव पर गए, खुरे पर गए, तो आगे वो मार्च का मौसम था, बड़ी बड़ी गंदम उगी हुई थी, वो गंदम के अंदर बैठा था, उसके दोनों हाथों में बरीटा पिस्टल थे। हम उसके नज़दीक पहुंच गए 10 गज के फासले पर, हमें पता नहीं था आगे वो गंदम में बैठा है, उसे पता चल गया भाई आ रहे हैं, तो वो सीधा उसने खड़े होकर हमारे ऊपर फायर कर दिए। मेरे साथ जो था हमारा खोजी, उसको फायर लग गया, वो गिर गया, मेरे साथ कान के साथ से गोली गुजर गई, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। शुक्र है जी, अल्लाह ने आपको बचाया। सर आप पुलिस में रहे, आप इसके अंदर की खूबियाँ भी जानते हैं, खामियाँ भी जानते हैं, आपका क्या तजर्बा है कि क्या महकमा पुलिस का जो एक किरदार है कि इसका पुलिस के जो है रूल्स बदले जाएं, पुलिस का कल्चर तब्दील किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस को अवाम दोस्त कैसे बनाया जा सकता है? इसमें जो अल्लाह ताला की गेट्स होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खूबियाँ होती हैं, जो पहले दौर में अंग्रेज़ से वो हमेशा ख़ानदानी लोग पुलिस में फ़ोर्स में भर्ती करते थे, जिस वजह से पुलिस का फ़ोर्स का मोराल बुलंद होता था। अभी हमारे पुलिस में हर किस्म के लोग आ गए हैं, कोई जो ASI भर्ती हो जाते हैं या कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं तो वो अपने आप को खुदा न खास्ता खुदा खैर समझने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत गरूर और तकब्बर में आ जाते हैं, और दूसरे जो गुरबा लोग हैं या शरीफ लोग हैं तो वो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, जिस वजह से पुलिस में और आवाम में ये जो है ना लंबाइयाँ फासले पैदा होते हैं। सर आपने बड़ी एक अहम नुक्ते की बात की कि जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों के साथ बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि आम तौर पर देखने में आया है कि पुलिस वालों को गरीबों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि बदमाशों को और दूसरे जो मुआशरे के ताकतवर लोग हैं उनके सामने वो झुक जाते हैं। सर क्या पुलिस में एहतसाब का कोई मौसर निज़ाम बनाया जा सकता है? जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, पुलिस को बहुत मुराद दे रहे हैं, पुलिस का वक़ार बहुत बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे DPO साहब मियां वाली हैं बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत समझदार काबिल अफसर हैं, और वो जो देखते हैं भाई ये गलत हो रहा है वो उसके आगे शीशा पिलाई हुई दीवार खड़े हो जाते हैं। शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़, डकैत के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़ वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार खड़े हैं। जनाब आपकी ज़िंदगी पुलिस मैन की है और बड़ी सख्त ज़िंदगी होती है, और अक्सर 24 घंटे ड्यूटी करके लोग तल्ख नज़र आते हैं, उनसे बात करो तो खाने को पड़ते हैं, ज़ाहिर है उनकी मजबूरियां भी हैं, इतनी सख्त ड्यूटी है, बहुत टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और आपने इस 40 साल सर्विस के दौरान हैरान कुन बात यह है कि आप फ़नून लतीफ़ा में भी रहे, आपको म्यूज़िक का भी शौक़ था, आपने परिंदों और जानवरों से भी मोहब्बत की, तो आपने किस तरह ये फील्ड इंतखाब किया कि आप मौसीकी के भी बड़े दिलदादा हैं बल्कि गीत भी गाए, तो आपने इस फील्ड का क्यों इंतखाब किया? इसमें मेरे वाले साहब जो थे वो भी शौकीन थे मौसीकी के, तो उनको देखते हुए मुझे भी मौसीकी का शौक़ लगा, और मैं मौसीकी में फिर मैंने 2003 में मैं लगा हुआ था लाहौर में, इंस्पेक्टर ट्रैफिक था, तो वहाँ पे फिर अलहमरा में हमारे एक मियाँ वाली के उस्ताद होते थे रहू साहब, वो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग देते थे, फिर हम उधर जाते थे, वहाँ पे एक छल्ला साहब थे, अनैत अली छल्ला साहब, वो भी मौसीकी में हमें समझाते थे। तो मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे वहाँ पे ड्यूटी होती थी, तो मुझे एक से दूसरे दिन टाइम मिलता था 3-4 घंटे, तो मैं वहाँ पर जाके बाकायदा मौसीकी सीखता था। सर आपने मौसीकी सीखी, गीत भी गाए, आपने जितने भी गीत गाए उनमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत कौन सा है, उसके चंद बोल सुना दें। मेरा ये गीत बहुत पसंद हुआ है गुल्ली अंधेरी, तो वो उसमें मैंने गाया है, वो रिकॉर्ड भी हुआ है, मेरा यूट्यूब पर मौजूद है, वता खैर प्रोडक्शन पर जयउल्ला खान सुंबल DSP आप लिखें तो वो उसमें आ जाएंगे जो जो मेरे गीत हैं, तो उससे आप ये सुन सकते हैं। ये गुल्ली अंधेरी वाला गीत है, और 2-3 गीत हैं, मैं ख़ुद लिखता भी हूँ कुछ न कुछ, तो वो फिर मैं अपनी आवाज़ में वो मैं फिर उनको गाता भी हूँ। सर आप शायर भी हैं और गुलकार भी हैं, तो क्या हमें थोड़ा सा आप गुनगुना कर गीत सुना सकेंगे? ये मेरा अपना लिखा हुआ है, तो ये मैं ये आपको सुनाता हूँ। हो लगनी ता जाने हो जिंदगी दे रोगे,
लगनी ता जाने दर्दां दे रोगे लगनी ता जाने दर्दां दे रोगे बेवस ने माड़ी दे हाल वेखे लगनी ता जानी दर्दां दे सेके। जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने गीत भी हमें सुनाया। सर म्यूज़िक में मौसीकी की एक बहुत बड़ी दुनिया है, आप किस गुलकार से मुतासर हैं? मैं पहले वो जो सुनते थे हम किसी दौर में हुसैन बाश की ढाडी को सुनते थे भवलपुर वाले, उसके बाद फिर तालिब हुसैन दर्द, मंसूर अली मलंगी, फिर हुसैन बाश गुल्लू, ऐसे लोगों को हम सुनते हैं, मेहदी हसन वगैरह, और जो अच्छा गायकी गाने वाले हैं उन सब को हम सुनते हैं। हर गुलकार अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छा गाना पेश कर रहा है और हम उसको सुन के महसूस हो रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी किसी की तरह कोई थोड़ा बहुत अच्छा गुनगुना के लोगों को खुश कर सके, तो इसमें हमारी खुशी होगी। जो लोग हमें सुन के खुश हो जाएंगे, लोगों की खुशी ज़्यादा मेरा मकसद यही होता है भाई, लोग खुश हो जाएं तो हमारी इसमें खुशी है। जो जी, आपने गुनगुना कर गीत भी सुनाया, आपने लोगों को पैगाम भी दिया। अब आखिर में हम आपसे ये कहेंगे कि मियाँ वाली के लोगों को के नाम एक मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल से दो चार है, हालात गंभीर हैं, गुर्बत और महंगाई है, आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों को, मियाँ वाली के नौजवानों को सलाम पेश करूँगा और उनको मैं यही जवाब पैगाम दूँगा, भाई मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। किसी जो हमारे में इसमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, गुस्से को पिए, गुस्से को बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला को भी वो बंदा पसंद है जो गुस्सा बर्दाश्त करता है, गुस्सा पी जाता है और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेहनत करें, वर्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत, आपका वर्क रायगा नहीं जाने देगा, आपको इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी मिलेगी। जनाब बहुत शुक्रिया संबल साहब कि आपने हमें वक्त दिया, हम आपके शुक्र